entertainment, demos, और मैं आ रहा हूँ कालिदास नाट्यगृह 23rd of February 2020। यह स्टॉप सुनने को पता है कि डॉक्टर बोतरा इनके मदर का उनकी जन्मदिन भी है। अब उसी जन्मदिन के अवसर पर हमारे कॉलेज में बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम होता है और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हर स्टूडेंट हर कोई अपने मदर के साथ वहाँ पर आकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं भी अपने मदर के साथ वहाँ पर आने वाला हूँ और इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने वाला हूँ। प्रोग्राम का नाम है मातृदेव मातृदेव गौर। इस प्रोग्राम का नाम है। हम लोग बिल्कुल यहाँ पर आएंगे, एक साथ आएंगे। अनापुरी रत्नमाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आइएगा जरूर। आने का जमाल करेगा। Excuse me, Ram sir. The voice is not audible. Now it is audible. Thank you.
Good evening, everyone. Welcome to Alumni Success Stories Season 3 initiative of Armite College of Engineering and Technology. Friends, we are starting this success story after getting huge response. So this third season, we are on day 1. And with us today, we have Mr. Sashi Wagmare. He is based in Delhi. And today's topic he is going to take is pursuit of knowledge in pursuit of happiness. So first, let's start introducing Mr. Sashi Wagmare. Friends, he has done BE in Electronics and Telecommunication from Armite College. Then he has done internship in Western Railway. Then he has done various certifications in MA History. Then he has worked in AVS Business Solution as executive in chair, assistant teacher at Navyug Institute, and now he is founder of JES, Jupiter Educational Services, based at New Delhi. So with this introduction, friends, let's welcome Mr. Sashi Wagmare, who is the founder of Jupiter Education Services. And today's topic is going to cover pursuit of knowledge is pursuit of happiness. So it's my call. Over to you, Shashi. Thank you, sir. Thank you very much. First of all, a warm welcome to each and every one of you. And I have to start with the very first slide. Give me a minute. Yes. I have to start with the very first slide. Yes, I'm here. So first of all, a Vandan or Namaste. What is the meaning of the Namaste? We used to do all the way, wherever we go. We used to do Namaste. Now there is a Corona, and this is the Indian Sanskriti that we are doing this stuff. Wherever we go, we just do Namaste. What is the meaning of Namaste? Is any one of you ask yourself, we are doing the Namaste, but what is the meaning of this? Vandan, Namaste. Namaste means मेरे अंदर का ईश्वरत्व आपके अंदर के ईश्वरत्व को नतमस्तक है. That is why Namaste. Not only India, but entire countries nowadays, due to the coronavirus, following the same Namaste. Isn't it? मुझे सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे माँ को वंदन करना है. मातृ देवो भव. आज हम जो कुछ भी है, जहाँ कहीं भी हम सब लोग जहाँ कहीं भी है, जिस किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, भले स्टूडेंट ही ना हो फिलहाल, isn't it? तो हम सबको सबसे पहले हमारी माँ के चरणों में वंदन करना. सेकेंड, दैट इज द रीजन वाई मातृदेवो भव, एंड सेकेंड इज पितृदेवो भव. भारतीय संस्कृति में माँ के बराबर पिताजी को हमारे स्थान दिया गया है. दैट इज द रीजन वाई पितृदेवो भव. उन्हें भी वंदन करता हूँ मैं आज. एंड बट ऑफ कोर्स आज हम जहाँ कहीं बैठे हुए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने अगर रोल प्ले किया है माँ पिताजी के बाद, तो वो है हमारे आचार्य, हमारे टीचर, हमारे गुरुजन. दैट इज द रीजन वाई आचार्य देवो भव. उन सबको आज वंदन करता हूँ मैं आज जहाँ कहीं बैठा हूँ. इन तीनों ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. इसके लिए सबको वंदन एंड नमस्ते. इसके अलावा मेरे जो फ्रेंड्स आज जो मुझे सुन रहे हैं, टीचिंग फैकल्टीज, इस सेशन को लेने के लिए जो कोई हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है इसके पीछे, उन सबको, पेरेंट्स, मेंटर्स, each and every one of you all guys are most welcome here. With wholeheartedly I'm welcoming you.
and thanks for Amite giving this opportunity to share our experiences. I want to say here one thing first. It's too early to say the word success here. The S, capital S. It's too early. I think अगर हमने सपने समंदर भर के देखे हैं तो समंदर का एक ड्रॉप और उस ड्रॉप का आधा काम शायद अभी हमें शायद वो भी नहीं, शायद वो कर पाया होगा। तो यही सब मातृ, पितृ एंड आचार्य, इन सब का रोल उसमें है। मैं क्रेडिट खुद नहीं लूंगा, इन सब का रोल है। Now we are moving towards the next slide. Yes, about me has the sir introduced me. Thanks sir, आपने मुझे introduce किया. But these are the educational qualifications that you can look on the screen. It's nothing but an outcomes. This is not the destiny, isn't it? हमारे लाइफ में अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या सोच रहे हो कि मुझे इंजीनियर बनना है? Now ask yourself, इंजीनियर बनना is your destiny? अंदर से अगर ट्रूथफुली अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा तो आप बोलोगे नहीं, इंजीनियर के बाद भी लाइफ बहुत बड़ी है, isn't it? You can go to any person who is a founder of anything. You can say even he is a businessman, even she is a businessman, even he or she is a teaching engaged in the teaching faculty, has a career. Whoever they are, go to them and ask them, the educational qualifications are their destiny? No, they are the outcomes of your work. So that is the reason why I have just mentioned the educational details that you have completed. These are the outcomes of my journey. They are not the destinies. For example, I have completed my diploma. I have completed my BE. I also done the internship with the Western Railway, as you can see that. I also completed the BSc in mathematics. I also completed some certifications. Now I'm pursuing the MA in history. अब आप सोच रहे होगे टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा ह्यूमैनिटीज में क्या कर रहा है? शायद इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डेफिनेटली मिलेगा, आने वाली सब स्लाइड्स में। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वर्क प्रोफाइल। मैंने अब तक जितने भी एल्यूमिनी सक्सेस सुने हैं, मैंने पर्सनली सबको सुना है, सबका वर्क प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है कंपैरेटिवली भी। 2013-14 में क्या हुआ था, मुझे कुछ यहाँ शेयर करना पसंद आएगा। 2013-14 में पास आउट तो हुआ था, लेकिन जॉब करना मेरे मन में नहीं था। मतलब आप सब बच्चे लास्ट सेमेस्टर में जैसे एंटर करोगे या फिर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर 7th सेमेस्टर में, सबको सपने आना शुरू करते हैं कि अभी हमको कॉलेज में कंपनीज आएगी, अभी हमको इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है और फटाफट जॉब लेके सेटल होना। बट प्लीज बिलीव मी, मेरे मन में 1% भी ऐसा जॉब के टूवर्ड्स कुछ ऐसा था नहीं अट्रैक्शन कि मुझे कोई कॉलेज में कंपनी आएगी, मैं कुछ एग्जामिनेशन दूंगा, उनके एंट्रेंस टेस्ट और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सेट हो जाऊंगा। तो मेरे मन में क्या चल रहा था उस वक्त? लगभग हम 4 ब्रांच हैं, शायद अब अरमाइट ने ब्रांच बढ़ा भी दी होगी, कंप्यूटर, आईटी, ईएसटीसी, मैकेनिकल, सिविल, आई थिंक ऑटोमोबाइल इज आल्सो देयर नाउ। हमारे वो ऑटोमोबाइल था नहीं, सो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट मिस्टर बोत्रा सर, रिस्पेक्टेड बोत्रा सर एंड रिस्पेक्टेड गुप्ता सर। तो कैलकुलेट करें तो ऑन एंड 400 to 500 बच्चे निकलेंगे, 60 की बैच भी हम करते हैं तो भी, isn't it? तो इसमें से 2 ही बच्चे ऐसे थे जो सिविल्स के लिए मुड़े, एक मैं और मेरा एक दोस्त। मतलब हमने सोचा ही नहीं था हमें जॉब करना है, ठीक है? तो मैंने कभी सोचा नहीं मुझे जॉब करना, मैं जॉब के लिए गया नहीं, और मेरे मन में क्या चल रहा था कि सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना। अब पेरेंट्स को मनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। वेट फॉर अ व्हाइल, मेरी स्लाइड थोड़ी I have to be on the slide. Work profile, yes exactly, ठीक है? तो मैं मेरे घर वालों के पास गया, मैंने काफी सारा एजुकेशन लोन लेकर रखा था डाडा मॉम में, बहुत स्ट्रगल करते हुए उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो उनका कहना यह था, शशि आप सिविल सर्विसेज का दिमाग से पहले निकाल दे और पहले तू जॉब कर, कहीं सेटल हो, 3-4 साल के बाद तेरे पास अटेम्प्ट्स तो है ही, तो फिर ट्राई कर। लेकिन मेरा मन हो नहीं रहा था, तो उन्हें किसी तरह कन्विंस करने में मैं सक्सेसफुल रहा। तो गाइस वहां से 3 साल की जर्नी है मेरी, 3 साल की। 2013-14 आई एम पास आउट, 14-15-16 सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे रेडी होना, 8 सवा 8 तक लाइब्रेरी पहुंचना, नाश्ता थोड़ा बहुत खाना, जो कुछ मुझे करना था उस पीरियड में मॉर्निंग में, और मेडिटेशन 10 मिनट का। ये करने के बाद प्लीज बिलीव में, मैं 6 बजे तक एक भी ब्रेक नहीं लेता था। फिर 6 बजे मेरा पहला ब्रेक होता था, आधे घंटे का, उसमें खाना पीना, टॉयलेट, चाय, थोड़ी बहुत गपशप दोस्तों के साथ। फिर 11 बजे तक, 6:30 बजे बैठने के बाद 11 बजे मेरा सीक्वेंस चलता था। 11 बजे लाइब्रेरी से निकलना, 12 साढ़े 12 तक घर पे पहुंचना,
और 2 बजे तक न्यूज देखना। ये मेरा डेली रूटीन था 3 साल का। इस 3 साल के जर्नी में मैं जब भी फेसबुक खोलता था तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, कोई यूएस में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई यूरोप में सेटल हो रहा है, कोई साउथ ईस्ट में सेटल हो रहा है, कोई मिडिल ईस्ट में सेटल हो रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग सेटल हो रहे थे। किसी की शादी हो रही है और हम क्या कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट। मैं पढ़ रहा था। ऐसा क्या गुनाह क्या था? गुनाह तो कुछ नहीं था कि मैंने लाइफ का कुछ नया वे सिलेक्ट किया। बट ऑब्वियस है हर पेरेंट्स को ये लगेगा कि मेरे बच्चे ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, अब वो कहीं जाके सेटल हो जाए। बट मैं उनका आज भी मैं उनका ऋणी हूँ और रहना पसंद करूंगा थ्रू आउट द लाइफ। उन्होंने मुझे वो 3 साल दिए। वो 3 साल मेरे लाइफ में बहुत लाइफ चेंजिंग रहे। मैं अपने आप को जान पाया। उस जर्नी में मुझे कहीं ना कहीं आज जो मैंने टाइटल सिलेक्ट किया हुआ है, परस्यूट ऑफ नॉलेज इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उसका एसेंस छुपा हुआ है। और मैं आज यही प्लेटफॉर्म यूज करके वो इस हिसाब से सब लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। So currently, I am the founder director of JES, short for Jupiter Education Services, based Delhi. Is this an achievement of a life? I can say no. It is not an achievement of life. Okay? Now, but it is too early to say that yes, I am a successful. No, I am not here to say that. सक्सेस का एस का आधा शायद उसका हमने कुछ चखा है, हल्का सा चखा है। चाशनी पूरी चखनी है अभी। Apart from that, I also did my work in AWS Business Solution for 1 year. I also completed my internship with the Western Railway. This is all about me, and this is just the outcome. This is not the destiny in my life. Never. So finally, I'm here with the topic pursuit of knowledge is pursuit of happiness. With the journey of my entire life, जब जो मैंने आज तक मेरे लाइफ में जो किया है, उसका मेरे ख्याल से मैं सार आपको इस सेशन में बता पाऊँ। Take it positively and try to implement all these principles that I'm going to explain you soon in your personal life. By speaking all this stuff in English, I have proven that I can speak in English, but I'm going to give my lecture and my session in Hindi itself. So please cooperate with me. Thank you. Now I'm next slide. Yes, it is a journey. मुझे आरमाइट के ये प्लेटफॉर्म यूज करते हुए सबसे पहले मुझे ग्रीटिंग्स, द बेस्ट विशेस, मेरी बेस्ट विशेस आप सबके लिए एक्सप्रेस करनी है। भले आप कोई भी हो, मैं आपको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो या नहीं हो, आप मेरे गुरुजन हो या नहीं हो, आप पेरेंट्स किसी मेरे हो, सबके पेरेंट्स मेरे अपने पेरेंट्स, whoever you are, आप सभी को सभी समय सभी प्रकार की शुभकामनाएं इन एडवांस। अब अपने लाइफ में कुछ भी करो, मैं वहां रहूं या ना रहूं, मेरी बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। संस्कृत में एक टर्म है षडरिपु, आप लोगों ने सुना होगा, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर। ऐसा एक इंसान मुझे बताओ जिसमें ये सब चीजें नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब में है, मेरे में है। जो बोल रहा है मैं बुद्ध नहीं हूँ, आई एम नॉट अ महावीर, आई एम नॉट अ मोहम्मद प्रोफेट, isn't it? I'm not a Shirdi Sai Baba, but listen carefully, we are a common people. Take it very positively, we are a common people, है ना? That's why we have to confront with काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर। हमारी इच्छा नहीं है फिर भी होने वाली चिड़चिड़, है ना? किसी के लिए शाप, हमारी इच्छा नहीं होती बट मुंह से निकलते रहता है। इस सब के बावजूद आप सबके लिए बेस्ट विशेस, आप लाइफ की जिस फील्ड में भी हो, आप सबके लिए बेस्ट विशेस एंड फॉरएवर, देयर इज नो कंडीशन इवन। हम सबको लगता है कि फ्यूचर ऑफ भारत कहाँ पे है। हम सबको अभी जो पुरानी जनरेशन है उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर जनरेशन इंडिया की पब में खराब हो रही है, क्लब में खराब हो रही है। मैं थोड़े उनसे डिनाई करता हूँ, थोड़ा मेरा ड्यूल स्टैंड है, मैं उनकी तरफ झुका हुआ नहीं हूँ। अगर आप लोग को समझना है कि इंडिया की जनरेशन कहाँ है, इंडिया का फ्यूचर कहाँ है, तो वो यहाँ है। आज मेरे सामने जो बैठा है ना ऑनलाइन टाइम पे आके, वो यहाँ है। इज दैट क्लियर? जिसके पैर अपने आप मुड़े कि 5 बजने आए हैं, आज कुछ सेशन होने जाने वाला है, कोई एक बंदा आएगा, बंदी आएगी, अपने बारे में कुछ बताएगा, शायद कुछ पॉजिटिविटी मिले। ऐसे हर एक बंदे को मेरा सलाह, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हियर इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। डोंट से दैट कि फ्यूचर इज ऑफ इंडिया इज violating or spoiling the career in the club and pub. No, the future of India is not there, future of India is here. That is why the Vandan first hour I did. Now, मुझे एक चीज बताना पसंद है यहाँ पे। मेरी जर्नी, मैंने स्टैंडर्ड 7 से एज अ स्वीपर, झाड़ू मारने वाला बच्चा,
ऐसे शुरू हुई थी, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू द लो इनकम फैमिली एट दैट टाइम. द फैमिली वॉज सो पुअर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हमारी फैमिली आती थी उस वक्त. तो मुझे जॉब करना पड़ा उस वक्त एज अ स्वेपर, झाड़ू मारना मेरा काम था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. प्लीज प्लीज बिलीव मी, सुबह 6-6:30 बजे उठना, 3000 स्क्वायर फीट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा कारखाना, उसे झाड़ू मारना. 1-1.25 घंटा मुझे लगता था पसीने से लथपथ. आज मुझे बताओ कौन से यहाँ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को स्वीपिंग करने के लिए अलाउ करेंगे. बट मेरे मॉम डैड ने मुझे अलाउ नहीं किया था. मेरी वहां पे जबरदस्ती थी कि मुझे करना है, मुझे करना है. शायद उसने मुझे कुछ लेसन्स पढ़ाए उस चैप्टर में मेरे लाइफ के. तो वहां से जर्नी शुरू होती है और आज जर्नी आगे रुकी नहीं है, जर्नी आगे चलती रहेगी. रेलवे में कभी बैठे हो ट्रेन में तो स्टेशन आते रहते हैं ना, वन आफ्टर अनदर. वैसे ये आउटकम्स है. दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन इज व्हाट हैप्पीनेस. डेस्टिनेशन यू मस्ट फॉलो द डेस्टिनेशन इन योर लाइफ, द हैप्पीनेस. नेक्स्ट आई वांट टू टेल दैट टॉपिक सिलेक्शन यही क्यों किया गया. मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने जो मेरे लाइफ में किया है उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है. यही चीज आपको इंसाइट देगी टॉपिक सिलेक्शन मैंने यही क्यों किया, और बहुत सोच समझ के, बहुत ठंडे दिमाग से. एक बार मुझे प्रीवियस स्लाइड पे जाना होगा. प्रीवियस स्लाइड पे, यस प्रीवियस स्लाइड पे जाना होगा मुझे एक बार. यस दिस वन. ठीक है. सो बहुत सोच समझ के मैंने क्या किया हुआ है, टॉपिक सिलेक्शन किया हुआ है. प्लीज काइंडली लिसन वेरी वेरी नीटली एंड क्लीनली. This will definitely help you in your life, personal life. I'm telling you, in your professional life even also, whoever you are. Next, हम सभी के रोल मॉडल लाइफ में होते हैं, सभी के हैं. मिस्टर रिस्पेक्टेड मिस्टर गुप्ता सर, रोल मॉडल ऑफ इज व्हाट, द मदर इटसेल्फ. उनकी माँ उनका रोल मॉडल है ना. देखा रहेगा ना, कॉलेज में एंट्री करते ही उनकी मम्मा का फोटो सामने खड़ा है, लगाया हुआ है. सोचो कितना रिस्पेक्ट करते हैं अपनी माँ के लिए. वैसे ही रोल मॉडल मेरे लाइफ में मेरे थे, मेरी मम्मा है और रहेगी. छोटे छोटे काम करते हुए उसने घर को संभाला है. कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए, 24 रुपीज पर डे फॉर 10 hours. She used to work for us to satisfy the needs of our family. That is why the very first need, the first model of mine is, role model of mine is my mom. आई, the Marathi word आई, ऐकायला छान वाटतं आई. That is why the first role model for me is my mom. Second role model is not the role model of mine. This is the role model of not only the India. He is the role model of entire world. I'm not wrong if I say that. The Swami Vivekananda, the respected Swami Vivekananda. Second role model मेरे Mr. respected Swami Vivekananda. वो सिर्फ मेरे खुद के पर्सनली रोल मॉडल है ऐसे नहीं, मेरे काम के भी, जो मेरे लाइफ में कर रहा हूँ उसके भी गुरु है वो. उनसे काफी सारी बातें सीखते आया हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ते आया हूँ, उनके काफी सारे लेसन्स में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे लाइफ में. और JES के कामों में उनका हर एक प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. एक लास्ट पॉइंट मुझे प्रीवियस स्लाइड से कंप्लीट करना था. एक लास्ट पॉइंट, जर्नी वाली मेरी स्लाइड. यस एग्जैक्टली. ठीक है. यस एक चीज और मुझे यहाँ कहना है आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके सर. हमें सोसाइटी के टुवर्ड्स कृतज्ञ रहना है. एक इंटेंस है वर्ड कृतज्ञ, कि मैं ऋणी हूं आप सभी लोग का. अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, शायद बोत्रा सर एंड रिस्पेक्टेड बोत्रा सर एंड रिस्पेक्टेड गुप्ता सर को भी अरमाइट एक चमत्कार लगता होगा कि ये 10 सालों में 7-8 सालों में हमने क्या कर लिया. जर्नी स्टार्ट हुई थी एक स्टूडेंट से, आज कहाँ से कहाँ निकल गया है अरमाइट. तो हमें सोसाइटी का कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है. और इंटेंस है वर्ड. हमें सोसाइटी ने कितनी श्रीमंती अदा की है, बिना मांगे दी है ना, दोनों हाथों से भर भर के दी है ना. तो इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव, रिटर्न बैक टू द सोसाइटी विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट ओनली विद द इंटरेस्ट. इजंट इट? हमारे कामों में से सोसाइटी को रिटर्न बैक करना है वो चीज. दैट इज व्हाई सोसाइटी की टुवर्ड्स कृतज्ञता एक्सप्रेस करता हूँ मेरी अपनी खुद की. नाउ आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द स्लाइड इज इनसाइट. मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, इस चीज का आंसर आपको शायद इस स्लाइड में मिले. मैंने यही टॉपिक क्यों लिया. नाउ द स्लाइड स्टार्ट विद द लॉकडाउन. हम सब आज सब लॉकडाउन से सफर कर रहे हैं. नाउ वी आर इन द फेज ऑफ अनलॉक 1. Isn't it? We are in the phase of unlock 1. लॉकडाउन से हम थोड़ा आगे आ गए हैं. जिंदगी भर तो घर में लॉकडाउन बन के रख नहीं सकते ना. मुझे मेरे एक कलीग्स ने कहा कि सर जब तक सेविंग्स है तब तक लॉकडाउन चलता रहेगा. जिस दिन सेविंग खत्म हो जाएगी सब बाहर पड़ने वाले.
मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा मुझे। तो ये एक स्टोरी है बच्चों, पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, ईच एंड एवरीवन। स्टोरी शुरू होती है न्यूटन से। ईयर है 1966, सॉरी 1666, 1666। आज कोरोना आउटब्रेक हुआ है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज में, लंदन में कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था। कॉलेरा से आज कोई सोच सकता है कॉलेरा से कोई मर सकता है? आज सोचना भी हंसने की बात हो जाएगी ना। वैसे कॉलेरा उस वक्त आउटब्रेक हुआ था, लाइक कोरोना उस वक्त कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था लंदन में। और न्यूटन फैमिली लंदन में रहती थी उस वक्त। तो लंदन में कॉलेरा की डिजीज आउटब्रेक होने की वजह से लंदन से नियर बाय एक विलेज था वुलथॉर। आज वो सिटी है लंदन में, ब्रिटेन में। उस वक्त का वो विलेज था। वहां पे न्यूटन की फैमिली शिफ्ट करती है और उस हाउस में एप्पल आर्चर, एप्पल का बगीचा भी था। लिटरली न्यूटन एक रूम में, आज तो हमारे पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल, जीमेल, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप 24 घंटे एक रूम में निकाल पाओगे। करेक्ट है? डोंट से यस। बट उस वक्त ये ऐसे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। 24 घंटे लिटरली एक रूम में बैठा रहता था, विंडो के सामने बाहर ताकते हुए न्यूटन। लेकिन कभी कभी अपने पार्क में, बगीचे में बाहर निकलता था घूमने के लिए वो। और हम सबको स्टोरी पता है कि पेड़ के नीचे बैठा है, एप्पल नीचे गिरता है। वो नीचे ही क्यों गिरा? न्यूटन के मन में सवाल आया कि ये नीचे क्यों गिरा। मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ, जर्नी ऑफ अ नॉलेज बिगिंस विद अ क्वेश्चन। अगर आपके मन में सवाल नहीं आते हैं, आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपकी नॉलेज की टूवर्ड्स जर्नी कभी शुरू नहीं होती। आप किसी फील्ड में भी अपना करियर क्यों ना कर रहे हो, आप किसी भी चीज में अपना प्रोफेशन क्यों ना कर रहे हो, अगर आपके मन को क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपकी जर्नी नॉलेज की स्टार्ट नहीं हो रही है। नाउ रिटर्न बैक टू द टॉपिक, द स्टोरी। न्यूटन के मन में सवाल आया, तो वहां से इन्वेंशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जर्नी स्टार्ट। न्यूटन यहाँ पे रुका नहीं। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ इंट्रोड्यूस किया। न्यूटन यहाँ पे रुका नहीं। न्यूटन ने थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉस, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्वेंशन करके चिट्टा खोल के रख दिया। न्यूटन यहाँ पे रुका नहीं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन यहाँ पे रुका नहीं। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, सबसे अगर गंदा, अगर आपका दिमाग एकदम आपको पूरा आउट करना है, जस्ट ट्राई टू लर्न एंट्रोपी। न्यूटन ने एंट्रोपी भी इंट्रोड्यूस की पूरे वर्ल्ड को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज ए इंजीनियर वी हैव डन विद द M1, M2, M3, M4, which was a very bad experience of mine even. होपफुली आप सबका भी होगा। कैलकुलस की एक पूरी की पूरी ब्रांच न्यूटन ने खोल के रख दी मैथमेटिक्स में। जर्नी शुरू कहां से हुई बच्चों? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन, दोज हु आर लिसनिंग, कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। दैट इज द रीजन व्हाई जर्नी ऑफ अ नॉलेज बिगिंस विद अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के मन में आना ही चाहिए, और बाकी सब आउटपुट हैप्पीनेस का ही मिलेगा। आप अगर हिस्ट्री न्यूटन की चेक करोगे, उसका आउटपुट किस चीज का मिला? हैप्पीनेस का मिला। एम आई करेक्ट? दैट इज द रीजन व्हाई परस्यूट ऑफ अ नॉलेज इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ज्ञान की साधना, ज्ञान की सेवा आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस बिना मांगे देगा। नहीं मांग रहे हो, घर पे भाग रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, आपके घर पे आके कोई फेंक के चला जाएगा, तेरा हैप्पीनेस होना। सेकेंड स्टोरी मुझे यहाँ शेयर करनी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी क्रेडिट खुद को नहीं लेते। उन्होंने पर्सनली कई बार कहा है कि मैं न्यूटन के कंधों पे बैठा हुआ हूँ। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वेंट नहीं किया होता तो शायद मैं E = mc² इन्वेंट नहीं कर सकता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी जर्नी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट हीरो इन द लिस्ट ऑफ 10, टॉप 10 ऑफ माइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मॉम डैड इज देयर, समाज इज देयर, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन इज वन ऑफ देम। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नी भी शुरू होती है ग्रेविटेशनल की फोर्स के पास। ये फोर्स वेव है कि पार्टिकल है? उनके मन में भी क्वेश्चन आया। एट द एज ऑफ 26 अल्बर्ट आइंस्टाइन पेटेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, और मन में क्या चलता था? बैक टू द माइंड, जर्नी ऑफ अ नॉलेज, कि ये है क्या मेरे आसपास जो दिखाई दे रहा है, ये मैटर, ये एग्जिस्ट करता क्या है? E = mc²। मैं आज भी, मुझे कहना पसंद है, E = mc² को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया। आपको रोज उसके बारे में कुछ ना कुछ तो नई चीज पता चलेगी। शायद ये भी E = mc² ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये इन्वेंशन में आज तक समझ प्रॉपरली, और जो कह रहा है मैं समझ गया, वो झूठ बोल रहा है।
आई बेट कंपल्सरी, आई कैन 100% बेट वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके अलग अलग एंगल्स है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है उसकी तरफ देखने के। E = mc², वो भी इनफाइनाइट है। हमको लाइफ के एंड तक शायद लाइफ खत्म हो जाएगी, बट हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसा इन्वेंशन कौन करके चला गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जर्नी ऑफ अ नॉलेज बिगिंस विद अ क्वेश्चन, और उनकी पूरी लाइफ हैप्पीनेस से भरी रही। एकेडमिक लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द पर्सनल लाइफ, इजंट इट? कितना रिस्पेक्ट मिला थ्रू आउट द लाइफ, उसी में छुपा था हैप्पीनेस कहीं ना कहीं। अपने उम्र के 26वें साल पे उन्होंने फोटोवोल्टाइक इफेक्ट थियरी इंट्रोड्यूस की पूरे वर्ल्ड में। ब्राउनियन मोशन, हम सब इंजीनियर हैं, हमें सब सुनने में अच्छा लगता होगा। ब्राउनियन मोशन मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एयर में कैसे होती है, इसका इन्वेंशन अल्बर्ट आइंस्टाइन। उम्र के 26वें साल, बेटा मतलब बच्चों हमारे आपकी उम्र से कम साल, 2-3 साल कम, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अभी हो, आपसे भी 1-2 साल थोड़े बड़े रहे होंगे। उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड 10 साल के बाद स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पेपर रिसर्च प्रोड्यूस पब्लिश किए है। क्या हम सोच सकते हैं? अब बैक टू द क्वेश्चन, जर्नी ऑफ अ नॉलेज, ये पूरी की पूरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नी, ये पूरी की पूरी न्यूटन की जर्नी शुरू कहां से होती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आना चाहिए। आप किसी फील्ड में भी क्यों ना हो, किसी फील्ड में भी, इवन यू आर अ बार्बर, यू आर अ म्यूजिशियन, इवन यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको आप सबके मन में पहला क्वेश्चन तो आना ही चाहिए आपके फील्ड के रिलेटेड, ये ऐसा ही क्यों है? आस्क योरसेल्फ। अगर आपके मन को सवाल नहीं आते हैं तो सॉरी टू से आपकी जर्नी कभी शुरू नहीं होगी टुवर्ड्स द नॉलेज। बस आप फंसे पड़े हो, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, बैग उठानी है, लोकल ट्रेन नहीं तो मेट्रो को जाके लटकना है, ऑफिस पहुंचना है, अपना एक पर्टिकुलर टास्क करके घर पे वापस आना है, और 30 तारीख को इंतजार करना है कि सैलरी कब आएगी। आस्क योरसेल्फ, व्हाई, व्हाट आई एम डूइंग हियर, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं इस पिक्चर में। That is the reason why pursuit of a knowledge is pursuit of happiness. This is the topic of today's. Now listen, next. मुझे एक यूपीएससी प्रिपरेशन करते वक्त मेरे को जो एक्सपीरियंस आया वो शेयर करना है, और दिस इज राइट प्लेटफॉर्म टू शेयर। मैंने एक टेबल फिक्स था स्टडी करने का, 3 साल मैंने उस टेबल पे गुजारे हैं। द टेबल वाज लाइक माय ब्रो, मैंने उसको नाम देके रखा था छोटा ब्रो। तो उस टेबल पे बैठना, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, इसका मतलब हमें किताबों से घिरा रहना पड़ेगा। लाइक दिस यू कैन सी दैट, ये मेरी ओन लाइब्रेरी है, ये आगे और बढ़ती रहेगी, लाइफ टाइम बढ़ती रहेगी, और ये मेरा वर्ल्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऐसे कतई नहीं है। काम बहुत बड़े, सबने बड़े देखे हैं। उसका छोटी सी पहली ईट, वॉल बड़ी खड़ी करनी तो पहली ईट तो रखनी पड़ेगी ना, शायद वो ईट रखी हम लोगों ने यहाँ पे, इजंट इट? तो लाइब्रेरी में पढ़ा रह जाता मैं पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, ये बुक वो बुक, ये बुक के बाद वो बुक, ये बुक के बाद वो बुक, मतलब बुक के पीछे बुक खत्म कर रहा हूँ मैं, रैक के बाद रैक खत्म कर रहा हूँ पढ़ के मैं, गट्ठों के बाद गट्ठे खत्म कर रहा हूँ। लेकिन टेबल पे बैठा हुआ हूँ या फिर लाइब्रेरी में खड़ा हूँ, मन में सवाल आता है, ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। अंदर से रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि ये तो इनफाइनाइट है, ये ओशन है, जितनी डुबकी मारो हाथ में कुछ लेके खड़े हो गए, बट वो ओशन खत्म नहीं होने वाला। ज्ञान इनफाइनाइट है, और जर्नी शुरू कहां से होगी? आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज द रीजन। और जो मेरे मन को सवाल आया था, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, मेरे स्टडी में मुझे पता चलता है, उपनिषद में ऋषियों को भी यही क्वेश्चन आया था कि ज्ञान तो इनफाइनाइट है, तो ऐसा क्या है जिसे पढ़ने से सब कुछ पढ़ लिया ऐसा हो जाएगा? ऐसी कोई जादू है क्या जिसे मैं एप्लीकेबल करूंगा तो सब कुछ पढ़ लिया ऐसा हो जाएगा? दैट इज द रीजन व्हाई द वर्ड केनम ज्ञातम जानामि भवे। ऐसा क्या है जिसे पढ़ने से मैं सब कुछ पढ़ लूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यही है कि पहला क्वेश्चन मन में आना चाहिए। जर्नी ऑफ नॉलेज बिगिंस विद द क्वेश्चन, सो एज सून एज पॉसिबल ट्राई टू फाइंड दैट क्वेश्चन इन योर पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट, एक चीज और, हम सब लोगों से घिरे हुए रहते हैं। अगर हम कॉलेज में है तो फ्रेंड से घिरे हुए हैं, घर में है तो फैमिली है, नेबर्स है, रिलेटिव्स है, अननोन्स है, हम सब घिरे हुए रहते हैं। लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो लोगों से घिरे हुए हैं, मार्केट में घूम रहे हैं तो लोगों से घिरे हुए हैं। बट इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ऐसा लगता है, हम सबको एक इंटरनल लोनलीनेस फील होता रहेगा, कि अकेलापन कहीं ना कहीं फील होता है, भव भय, और डर भी लगता है, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। अरे ये नहीं हुआ तो क्या, वो नहीं हुआ तो मेरे लाइफ में क्या।
अब ये नहीं हो पाया तो अब क्या? मैं कहता हूँ वो इनसिक्योरिटी, वो फीलिंग अकेलेपन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ रही है, यू आर ऑन राइट ट्रैक इन योर लाइफ। अगर नहीं आ रही है तो टटोलना है अपने आप को कि हम कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं आ रहे हैं। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं इनसिक्योरिटी तो फील नहीं करता कभी लाइफ में। करना जरूरी है, करना जरूरी है। भले आप कितने बड़े बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, या आप किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के छोटे से प्यून क्यों ना हो, आपके मन में हल्का सा इनसिक्योरिटी, अकेलापन होना जरूरी है। मैं कहता हूँ वो समय है तपश्चर्या करने की, साधना करने की। आपके जो मन में सवाल आएगा उसके आंसर्स ढूंढने की। इज दैट क्लियर? वो बहुत जरूरी है। और आपकी ये जर्नी जिस दिन शुरू होगी, आपकी इस जर्नी के सफर में आप एक एक सफर तय करते रहते हो। वो सफर को मैंने नाम दिया हुआ है द जर्नी ऑफ सेल्फ आई हैव टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड। द जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू सेल्फ रियलाइजेशन। द जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को अवेयर करना, यही जर्नी आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की साधना। नेक्स्ट, म्यूजिक में मुझे एक चीज यहाँ पे कहनी है। और म्यूजिक में आपने देखा रहेगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक कंटिन्यू चलते रहता है। तबला, पियानो, गिटार, बांसुरी एंड ऑल, सबका एक अपना कंटिन्यू म्यूजिक चलते रहता है। उसे एक वर्ड है लहरा, लहरा कहते हैं उसे। मतलब वर्ड्स तो आते रहेंगे वोकल, बट म्यूजिक कंटिन्यू चलते रहता है म्यूजिक में, इजंट इट? ये मेरे और जेस का, जेईएस के जीवन का लहरा, वो लहरा है ज्ञान साधना। वो कंटिन्यू चलता रहेगा और फिर जो कुछ मिलते रहेगा अचीवमेंट्स, वो बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बनती रहेगी। नेक्स्ट चीज, एक अच्छा पेंटर कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले उसके मन में पिक्चर तैयार करता है वो, और बाद में कैनवास बनाता है। कैनवास बनाने से पहले मतलब पिक्चर बनाने के पहले एक कच्चा काम करता है, रफ वर्क करता है, उसे हम कैनवास कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोग को अपने लाइफ में लहरा, एक कंटिन्यूस कमिटमेंट टुवर्ड्स पर्टिकुलर वर्क, टुवर्ड्स द फाइंड दैट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो लहरा आप सबके लाइफ में होना जरूरी है। वो कैनवास, उस कैनवास पे आपकी अपने आपको अपना चित्र खुद बनाना है, कोई तीसरा आके नहीं बनाने वाला। और मुझे ये कहना बहुत पसंद आता है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहते रहता हूँ, लाइफ में एक टर्न ऐसे आता है जहाँ पे ना आपको आपके पेरेंट्स साथ सपोर्ट करेंगे, ना फ्रेंड सपोर्ट करेंगे, ना आपके रिलेटिव सपोर्ट करेंगे, ना नेबर्स, ना अदर्स, नॉट इवन अननोन। आपको सपोर्ट केवल और केवल आपकी स्किल्स सपोर्ट करेगी आपको उस वक्त, और आपकी कमिटमेंट। सो आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Yes, basic principles of pursuit of knowledge and pursuit of happiness is pursuit of happiness. थोड़ी इंसाइट लेने के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन आनी चाहिए मन में, क्वेश्चन आनी जरूरी है, मैं तो कह रहा हूँ आनी चाहिए। डेकार्त करके एक फिलोसोफर थे यूरोप में, डेकार्त, उनकी फिलोसॉफी का ही नाम था डाउटिज्म। कुछ भी बस सुन के सुनना नहीं है, मन में सवाल आनी चाहिए, वो वैसा क्यों है। अगर एज ए स्टूडेंट आप लेक्चर के लिए बैठे हो तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, पढ़ा रहा है ये ऐसा ही क्यों है। डाउटिज्म, आस्क द डाउट, आस्क द डाउट, मन में सवाल आनी चाहिए, तब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। देन आपको आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स मिलती रहेगी, इट विल अल्टीमेटली बिकम्स द आउटपुट्स, आउटकम्स, बाय प्रोडक्ट, नॉट द डेस्टिनी। नाउ basic principle of pursuit of knowledge, so very first principle is that insistence on understanding. हम इंजीनियर्स हैं, मुझे यहाँ कोई रिग्रेट फील नहीं होता, मैंने काफी सारा रट्टा मारा है उस वक्त, और मुझे, मैं बता रहा हूँ, जो जर्नी ऑफ नॉलेज बिगिन हुई वो मेरी डिग्री के बाद बिगिन हुई, एकदम बी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ कोई मतलब रिग्रेट फील नहीं होगा, कोई थोड़ी सी शेमनेस भी नहीं आ रही। होपफुली आप एज अ टीचर मुझे समझ पा रहे हो। मिस सुरभि मैम मेरे से बहुत क्लोज थी उस वक्त, तो वैशाली मैम, जादव सर, मुझे मेमोरीज याद आ रही है। आई वॉज द वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज नॉट द टॉपर वन। और मैं एक ही चीज के लिए जाना गया था पूरे इस कॉलेज में, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो वैशाली मैम, सुबी मैम मुझे बहुत प्यार करते थे उस एक चीज की वजह से। भले हम एकेडमिक में अच्छे नहीं थे, बट हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे थे, तो मुझे वहां पे थोड़ा सपोर्ट मिला। तो गेट बैक टू द पॉइंट नाउ,
इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ परस्यूट ऑफ नॉलेज इज व्हाट? अगर आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान की साधना करनी है, तो आपको हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, इंसिस्टेंस ऑन अंडरस्टैंडिंग. रट्टाफिकेशन करके आगे नहीं बढ़ना है. रट्टा मारोगे उस वक्त के लिए पास हो जाओगे, 4 दिन के बाद हमें तो क्या 4 दिन का गैप मिलता है, इंजीनियर्स को मिलता है 4 दिन का गैप हर पेपर के बीच में, कभी कभी 8 दिन का मिलता है, मैच है तो 10 दिन का मिलेगा. हम क्या करते हैं, इजी सॉल्यूशन लाएंगे, रट्टा मार के एग्जाम में जाके बैठेंगे. उस वक्त के लिए निकल गए भाई, उस वक्त के लिए पास होकर निकल गए, बट सब्जेक्ट समझने के नाम पे हमने क्या किया? कुछ नहीं किया. घर वालों को लगता है अच्छे मार्क्स से बच्चा पास हुआ, हमें क्या आ रहा है पर्सनली? कुछ नहीं आ रहा है. बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल इज absent over there. Insistence on understanding. मुझे ये समझना है ये ऐसा ही क्यों है. नो रट्टाफिकेशन. अगर ये फॉलो करोगे प्रिंसिपल, आपका डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगा. नो वन कैन बीट यू. आपके वर्ड्स में एक कॉन्फिडेंस झलकेगा, आप अपना टॉपिक अच्छे से रख पाओगे किसी के सामने भी. आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो लास्ट ईयर, या फिर मैम ने प्रेजेंटेशन कहने का क्लासरूम में देने को कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई बॉस है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आपने इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, डे 1 को ही हमको पूछते हैं कि भाई कब ज्वाइन करने वाला है तू. अब बोलते हैं सर 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा. ज्वाइन करने के पहले हमारे हाथ में लिस्ट आती है पूरी ऐसी. अब मुझे समझना है ना कि मेरा रोल यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मेरी अथॉरिटीज क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है. वहां पे हम फॉलो करेंगे इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग, इजंट इट? घर में हम बहुत, सबके पास स्मार्टफोन है. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सबके पास स्मार्टफोन है. कोई ऐप आता है, मास लेवल पे इंस्टॉल करके हम यूज करना स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप. मुझे बताओ व्हाट्सएप आप में से कोई भी एक बंदा ऐसा है जिसको किसी ने पर्सनली आके सिखाया कि कैसे टाइप करना है, कैसे मैसेज सेंड करने हैं, चीजें कैसे शेयर करनी है, स्टेटस कैसे रखना है? किसी ने आपको आके सिखाया? नहीं सिखाया. लेकिन कोई आप बुक खोलते हो, पहला पैरा शुरू करते हो पढ़ना, सर मुझे कोचिंग चाहिए. भाई ये वही लड़का था ना जो व्हाट्सएप हैंडल कर रहा था, ये वही बंदी थी ना जो व्हाट्सएप हैंडल कर रही थी. उस वक्त तो इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग रखा आपने, जैसी बुक खुली गायब. आस्क योरसेल्फ व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ. इज दैट क्लियर? सेकंड प्रिंसिपल है स्वाध्याय. स्वाध्याय is a Marathi word. You can also use the same word in Hindi, and you can also use the same word in Sanskrit. स्वाध्याय means 2 मतलब निकलते स्वाध्याय के. स्व से किया हुआ अध्ययन, रिसर्च, एंड स्व के लिए, खुद के लिए. लाइफ में जो स्वाध्याय करेगा वो कंपटीशन में बना रहेगा. जो स्वाध्याय नहीं करेगा उसे उठा के फेंक दिया जाएगा ऐसे, लाइक अ मक्खी इन टी, फेंक दिया जाएगा कंपटीशन के बाहर. दैट इज द रीजन व्हाई स्वाध्याय. आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा डेटा भी एनालिसिस करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि लड्डू रेडी में खा के निकल गए, सैलरी आ गई घर पे. ऐसा नहीं होने वाला बच्चों, कतई नहीं होने वाला. आपको अगर सैलरी दे रहा है ना, वो पूरा निचोड़ के देगा. आपको अपना हर एक काम समझना है. उस वक्त आपको स्वाध्याय, आप वो भी फील्ड में क्यों ना हो, आप किसी फील्ड में भी क्यों ना हो, स्वाध्याय अगर अब्सेंट है, आप कंपीट नहीं कर पाओगे, आप उस फील्ड से उठा के फेंक दिए जाओगे. आपको स्वाध्याय, that is the reason why basic principle of pursuit of knowledge is pursuit of happiness you have to follow in your personal life. Whoever you are at whichever field in which you are working, you have to follow this principle. Then your journey get flourish, flowers लगना start हो गए उस पे, and then happiness, वो तो destiny है हमारे लिए. Is that clear? Next, तीसरा प्रिंसिपल है, ये मराठी है. I must have to be, yes exactly this slide. अभ्यास से प्रकट आवे ना तरी उगी रावे, एंड प्रकटोनी नासावे हे बरे नवे. संत रामदास महाराष्ट्र के थे आई मीन. उनका ये फेमस कोट है मराठी में. ये कोट कहना क्या चाह रहे हो सर आप? मुझे हमें तो समझ नहीं आया. मैं कहना ये चाह रहा हूं आप सभी लोगों से, अगर मैं फॉर एग्जांपल एज अ टीचर का प्रोफाइल लेके मैं बात करूं, मैं अगर टीचर हूं और मैं बच्चों को सेशंस दे रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, सेमिनार दे रहा हूं, तो मुझे कोई भी क्वेश्चन आए, बच्चों में से कोई भी क्वेश्चन अगर रेस करता है तो मुझे उसका क्वेश्चन देने आना ही चाहिए, नहीं तो मैं वहां एज ए टीचर रहने का हक नहीं रखता. ये बेसिक प्रिंसिपल मैं मेरे पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूं. अगर मैं मेरे मुंह से कुछ बोलूं तो उसके पीछे मेरी खुद की बेस, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, खुद का एक जबरदस्त अभ्यास, स्टडी चाहिए.
यही प्रिंसिपल आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ भी करो अपने लाइफ में, किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, अगर आप अभ्यास से प्रकट आवे, आप जो अपने मुंह से बोलने जा रहे हो उसके पीछे आपका पर्सनल स्टडी है, नो वन कैन बीट यू। दैट इज द रीजन व्हाई अभ्यास से प्रकट आवे। और कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे आता है तो उसका आंसर मुझे देना आना ही चाहिए। मैं सभी टीचिंग फैकल्टीज को चैलेंज करता हूँ कि आप अपने बच्चों को चैलेंज करो। अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर सेशन 1 घंटे का देने जा रहा हूँ, देने जा रही हूँ कॉलेज में, आप में से कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन मुझे पूछो, अगर उसका आंसर नहीं आया तो मैं बख्शी से दूंगा आप लोग। ये प्रिंसिपल सेट करना है हम सब लोग को हमारे लाइफ में, देन नो वन कैन बीट यू। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ परसूट ऑफ नॉलेज। द फोर्थ वन इज दैट नो परमिशन टू से दैट आई कांट अंडरस्टैंड। हमें परमिशन नहीं है। बच्चों, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो 1-2 सालों में, कोई लास्ट ईयर में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाके, किसी कंपनी को जाके, किसी इंडस्ट्री को जाके ज्वाइन करने वाले हो आप, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे ना इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो उतनी सैलरी मिलेगी। अगर प्यून की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अपनी ताकत रखते हो तो प्यून की सैलरी मिलेगी आपको। अगर सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत रखते हो तो सीईओ की डेजिग्नेशन आपको वहां मिलेगी। आप वहां बोल सकते हो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, टेल मी फर्स्ट। यू कांट से दैट। यू डोंट हैव परमिशन टू से दैट कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, उठा के फेंक दिए जाओगे। You have to follow this principle in your life. I'm following the same. I'm following the same. That is why I'm telling you guys, you have to follow the same in your life. And you will see the change, not exactly on the day that अगर आपने अप्लाई किया उसी दिन आपको चेंज नहीं मिलेगा। आपको फ्यूचर में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। साइंस को पता ही होगा 21 दिन लगती है ना हमको कोई भी आदत चेंज करने के लिए, 21 डेज लगते हैं ना। कि पर्टिकुलर चीज अगर 21 डेज तक हम करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। तो वैसे ही ये बेसिक प्रिंसिपल्स 21 डेज के लिए अप्लाई तो करके देखो एक बार, करके तो देखो एक बार, डेफिनेटली विल सी द चेंज इन लाइफ। नाउ नेक्स्ट, प्रचिति के बोल। ये अभ्यास से प्रकट आवे के जैसे ही है, ये कुछ उसी के रिलेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बच्चों में बहुत होता है, एग्जाम के 1 दिन पहले प्रोबेबली बहुत ज्यादा होता है। ये रट्टा मार के आए रहता है, बच्चों में कैंटीन में बैठे हुए हैं, एग्जाम के 1 घंटा पहले डिस्कस चल रहा है पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो सबके पास मटेरियल होता है दिमाग के अंदर, सब लोग अपने में लगे रहते हैं कि मैंने कितनी पढ़ाई की है शो ऑफ करने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक की। रियलिटी में कुछ नहीं आता, हम बस हम रट्टा मार के आए हुए। जो इंजीनियर्स है प्लीज कमेंट, हम रट्टा मार के आए, रियलिटी में हमें कुछ समझ नहीं आता। ये 4 लाइन है सर, ये लिखने के बाद 6 मार्क्स मिलने वाले हैं ना, हाँ बस हो जाएगा सर। मतलब हम कर क्या रहे हैं, हमें उस टॉपिक के बारे में पता तो नहीं है, बस रट्टा मार के आए और अपना प्लेटफॉर्म यूज करके कुछ ना कुछ तो अपने बारे उस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं और वाह वाह बटोर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है लाइफ में, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। हमें उस पर्टिकुलर चीज पे, आज मुझे रिस्पेक्टेड गुप्ता सर, रिस्पेक्टेड बोत्रा सर, इनका एग्जांपल देना पसंद आएगा इस चीज पे। क्या ये दोनों रट्टा मारते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अरमाइट कैसे चलाना है? प्लीज टेल मी इन कमेंट। नो, दे आर नॉट डूइंग रट्टाफिकेशन टू रन द ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑल टुगेदर, सबको लेके चलना है ना आगे। क्या वो रट्टा मार रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में? नेवर, दे आर नॉट डूइंग रट्टाफिकेशन, दे आर डूइंग इंसिस्टेंस ऑन अंडरस्टैंडिंग। इज दैट क्लियर? मतलब अगर उनके मुंह से अगर कुछ वर्ड निकल रहा है तो उस वर्ड के पीछे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जबरदस्त अभ्यास का बेस है, पढ़ाई का बेस है, व्यासंग है, द प्रॉपर वर्ड इन मराठी। नो वन कैन बीट यू। ऐसा ही हमें अपने हर एक प्रोफेशनल लाइफ में बनना है कि मैं हर एक चीज समझते हुए आगे चलूंगा और मैं उसी टॉपिक पे मुंह खोलूंगा जिसपे मुझे इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पता है। मुझे हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। दैट इज द रीजन व्हाई फुल नॉलेज बटोरने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में काफी सारी बातें मैंने पढ़ी है, उसमें से एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बार्टर सिस्टम आपको पता होगी, पहले तो करेंसी थी नहीं तो लोग चीजें एक्सचेंज करते थे ना। किसी को टमाटर चाहिए तो मेरे को आलू चाहिए, तो तेरे टमाटर मुझे ले, मेरे आलू तुझे, एक्सचेंज करते थे ना हम लोग। मतलब कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स पे इकोनॉमी काम करती थी बार्टर सिस्टम में। हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की बार्टर सिस्टम से लेके लीगल टेंडर की तरफ मुड़ती है, और आज लीगल टेंडर से होते हुए डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की तरफ मुड़ती है। मेरा इस टॉपिक पे कमांड नहीं है, मेरी पर्सनल स्टडी इस टॉपिक पे रिसर्च मेरा चल रहा है, बट मेरी कमांड अब तक इस टॉपिक पे नहीं आई है। अगर इस पे मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं मेरा मुंह सील रखूंगा, क्योंकि मेरी उस टॉपिक पे पढ़ाई कम है। हाँ, अगर मेरी पढ़ाई होने के बाद मुझे कोई छेड़ता है तो मैं आंसर करूंगा।
दिस इज नथिंग बट एन प्रचिति के बोल। अगर मुंह से वर्ड निकलना है तो आपको उसके पीछे पढ़ाई चाहिए। फॉलो दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ एंड you will face the happiness in your life. The last one is that don't make your opinion too much strong. अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप किधर भी काम कर रहे हो, एज ए रिसर्च एनालिस्ट आप काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अपने ओपिनियंस डोंट मेक योर ओपिनियंस टू मच टफ। अगर आप टफ करोगे, आपने अपने माइंड को ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप नई चीजें नहीं समझ पाओगे। सामने वाला क्या कह रहा है सुन तो लो, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, मेरे ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है वो क्या है। ऐसा करना नहीं है अपने लाइफ में। हमको सुनते लो, क्या बोलना चाह रहा है वो, क्या बोलना चाह रही है वो, एक बार सुन तो लो, क्या पता कुछ नई चीज पता चल जाए। So these are the basic principles of pursuit of knowledge and pursuit of happiness. हमने स्टार्ट किया था न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन से होते हुए। नाउ वी आर ऑन द स्लाइड्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स। वी आर आल्सो डन विद द बेसिक प्रिंसिपल्स। नाउ आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड टुवर्ड्स द कंक्लूजन। मुझे कंक्लूज करना है, मैंने कंक्लूजन करना स्टार्ट नहीं किया, बस मुझे ऐसा लगता है कंक्लूजन की तरफ मुड़ना चाहिए। टुवर्ड्स द कंक्लूजन, यस। एक चीज मुझे और कहनी है। सर मान लिया आपने कहा क्वेश्चंस मन में आने चाहिए, अब क्वेश्चन तो आ रहे हैं। मान लो एक बहुत अमावस्या की रात है, बहुत अंधेरा है। गो टू द टेरेस ऑफ योर बिल्डिंग, एक कॉर्नर में खड़े हो जाओ एंड लुक एट द स्काई। वी नो द स्पेस इज इनफाइनाइट, ब्रह्मांड अनंत है, हमें पता नहीं खत्म कहाँ होता है। साइंस के पास हबल स्पेस टेलीस्कोप, अमेरिका की टेलीस्कोप है नहीं, और स्पेस में से लोकेट किया हुआ है। उस स्पेस से ह्यूमन आई ने 13 बिलियन लाइट ईयर्स, इतनी दूरी का डिस्टेंस अपने आंखों से देखा है इंसान ने। बट हमें पता नहीं है ये ब्रह्मांड खत्म कहाँ होता है, इसकी डेड एंड कहाँ है इसका, वी डोंट नो। ठीक है, हमें पता है देयर आर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर इन द स्पेस। There are different types of galaxies in the space. Spiral galaxy like a Milky Way galaxy, I think. Milky Way galaxy में कोई solar system है? Now ask yourself, in the terrace, in the corner, in the dark night, look at the sky and ask yourself, इतने millions, billions, trillions and quadrillions galaxies में कहीं एक Milky Way galaxy है, Milky Way galaxy में कहीं एक solar system है, इस solar system में एक planet है अर्थ नाम का, उस अर्थ में बहुत सारे countries है, उसमें एक इंडिया नाम की एक country है, उस इंडिया नाम की कंट्री में महाराष्ट्र नाम का एक स्टेट, महाराष्ट्र नाम के स्टेट में एक मुंबई में इस बिल्डिंग पे, इस टेरेस पे मैं खड़ा हूं। मैं कौन हूं? आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ। मैं इस पिक्चर में क्या कर रहा हूं? मेरे होने से इस पिक्चर को एक इंपॉर्टेंस मिला है ना। अगर मैं ना हूं तो हम स्ट्रे डॉग के जन्म को आए हैं क्या? गॉड ने हमें स्ट्रे डॉग करके भेजा क्या अर्थ पे? नहीं ना। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, सो इट्स आवर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू आस्क आवरसेल्फ, हु एम आई? मैं इस पिक्चर में क्या कर रहा हूँ? व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? मुझे यहाँ कहने से शर्म नहीं आएगी बच्चों, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एमएस करके बाहर जाना है। आई एम इन इंडिया बाय चॉइस। आई रिपीट, आई एम इन इंडिया बाय चॉइस। मैं भी एमएस करके बाहर जा सकता था, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी, मैंने बाय चॉइस इंडिया सिलेक्ट किया है। अब जैसे जो निकलेंगे भारतीय संस्कृति का झंडा लेके, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम आगे करने के लिए निकलना है। हमें जो आर्माइट से निकलना है, भारत का नाम ऊंचा करने के लिए हर एक फील्ड में काम करना है। डोंट डायरेक्टली गो टू द एमएस यार, मतलब खुद सोचो, मुझे जिस संस्कृति ने बड़ा किया, जिस देश ने बड़ा किया, जिस कंट्री का मैंने रिसोर्सेज यूटिलाइज किया, अब वक्त आने में बाहर चला जाऊं मैं? आस्क योरसेल्फ, आई एम हियर बाय चॉइस एंड इट्स योर पर्सनल लाइफ व्हाट टू डू। नाउ टुवर्ड्स कंक्लूजन आई एम मूविंग। इफ अगर आपकी जर्नी स्टॉप हो जाती है, अगर आपको लगता है मेरी इंजीनियरिंग खत्म, मतलब मेरा नॉलेज के टुवर्ड्स जर्नी खत्म, आप फेंक दिए जाओगे। 6 महीने बाद आपने जो सिलेबस पढ़ा है वो नन हो गया, नथिंग है वो आपकी लाइफ में। टेक्नोलॉजी इतने रैपिड बदल रही है आज की डेट में, अगर हम उसके साथ बने नहीं रहे तो हम फेंक दिए जाएंगे। अगर आपकी जर्नी स्टॉप, इसकी मतलब आपकी नॉलेज, जो रिवर की नॉलेज है वो स्टॉप हो गई, गड्ढा बन गया, गड्ढे का पानी इवापोरेट होके चला गया, पीछे क्या बचा? एक गंदा दर्प, एक गंदा स्मेल। ऐसे कैरेक्टर का पर्सनालिटी हमको कैरी करनी है थ्रू आउट द लाइफ? नेवर।
That is the reason why journey of a knowledge कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. Even after you have completed your degrees, post graduation, MPhils, PhD and all. So this is the conclusion towards I am. Second is what? Pursuit of knowledge. सर फायदा क्या मिलेगा इसका? फायदा अगर आप हर चीज में फायदा ढूंढोगे तो लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाओगे. नहीं कर पाओगे. आई एम टेलिंग यू. अगर आप परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉलो करके देखते हो तो डेफिनेटली मुझे आपकी बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर, योर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, उसमें एक सॉफ्टनेस आएगा, एक नम्रता, मराठी वर्ड नम्रता, एक सॉफ्टनेस, ठीक है, बिहेवियरल नम्रता आएगी आपके एटीट्यूड में. आप शांत होने लग जाओगे यार. अगर आप गुस्सा करते हो ना अपने लाइफ में, हर एक 2 मिनट में गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ हो जाते हो, वो करना बंद कर दोगे. आप शांत हो जाओगे. आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे. आप तभी मुंह खोलोगे जब आपसे कोई बात करेगा, कोई चीज पूछेगा, आप शांत हो जाओगे. इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो शांत रहना भी एक इलोक्वेंट सेशन होता है अपने आप में. और वो कौन अंडरस्टैंड कर पाएगा? आपके अपने फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, ईच एंड एवरीवन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑन द स्लाइड ऑफ टुवर्ड्स कंक्लूजन, हमें पता है ह्यूमन सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. आज की हमारी सोसाइटी, क्या लगता नहीं आप लोग को, इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. अगर इस सोसाइटी में बने रहना है, अपना स्थान बनाए रखना है, तो मुझे नॉलेज होना जरूरी है ना. दैट इज द रीजन व्हाई ज्ञान की साधना, परस्यूट ऑफ नॉलेज. नाउ आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अगर मैंने टेक्नोलॉजी को 2 दिन के लिए बंद करके बाहर रख दिया, ऐसे दरवाजे पे लटका दिया और उसकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, और 3 महीने बाद बाहर आ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, इतनी सारे एप्स, इतनी सारी चीजें हो रही है, हमें लगेगा कि हम एलियन के प्लेनेट पे तो नहीं आ गए. बने रहो. That is why I want to say that. That is what I want to say that I mean. It means the society, human society is moving towards the knowledge-based society. That is the reason why pursuit of knowledge becomes very important in each and every one of life. Is that clear? Next, you have to देखो, हम सब में होड़ लगी पड़ी है. मैं अभी स्टूडेंट को ले रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में टॉप कौन करेगा. हमारे ब्रांच में, हमारे वक्त सब लोग में लगी पड़ी थी. मुझे नाम याद आ रहा है, श्रद्धा, एक मैं भी था, एक गंगेश था. ये हम 4-5 लोग ऐसे थे, मैं खुद को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ, जिनके सपने थे यूनिवर्सिटी में टॉप करना. मेरा भी था, बट मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया. मैंने एक्सप्रेस किया आप लोग के सामने कि मैं एवरेज स्टूडेंट था. बट बच्चों, मुंबई यूनिवर्सिटी से भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ. हमें उसमें टॉप करना है. यूनिवर्सिटी में तो गोल्ड मेडल ले ही लो, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है. सबसे ज्यादा खुश तो हमारे गुरुजन हो गए, आपके टीचर्स हो गए, हम होंगे, आपकी रिस्पेक्टेड ट्रस्टीज हो गए. इज दैट क्लियर? उसमें तो गोल्ड मेडल लाना ही है, बट उससे बड़ी यूनिवर्सिटी है लाइफ, उसमें टॉप करना है हमें. अब उसमें टॉप करना है तो चेंजेस लाना जरूरी है. नो रटिफिकेशन, इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग, परस्यूट ऑफ नॉलेज. यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल इन योर लाइफ. नो वन कैन स्टॉप यू. देन आई बेट यू, नो वन कैन स्टॉप यू. हार हो ही नहीं सकती, हार हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट, आई वांट टू टेल यू दैट no matter what you win, if you follow the principles, pursuit of knowledge, no matter what you win in your life. Therefore, all the educational and professional achievements in our life becomes byproduct. They are not the destinies, isn't it? आप अलग अलग फील्ड में हो, हर किसी ने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है. क्यों अचीव किया है? आज ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी टेक्निकल फील्ड लगी पड़ी है. ठीक है, अगर उस बंदों के पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं होगा तो वो आज रन कर पाएंगे उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है ना. आज उनके लिए बाय प्रोडक्ट है क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है. इज दैट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मुझे यहाँ पे कंक्लूजन करते वक्त एक स्टोरी शेयर करनी है. स्टोरी में सबसे लास्ट में सुनाऊंगा आपको, लास्ट के 10 मिनट्स में. लास्ट का 10 मिनट्स में मुझे आपको एक स्टोरी बतानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है. वो स्टोरी क्या है, वो क्या है स्टोरी, आपको लास्ट के 10 मिनट्स में बताऊंगा. नाउ आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. I have to go to the next slide. Yes, मुझे जेस के बारे में, मैंने नाम रखा है जेस, JES, जुपिटर एजुकेशनल सर्विसेज.
मुझे यहाँ पे उसके बारे में कुछ शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन। आज जेस की एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट अ डेस्टिनी फॉर मी। आई थिंक दिस इज द आउटकम ऑफ माइन जर्नी। द जर्नी ऑफ व्हाट? परसूट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का पीछा, उसका ये आउटपुट है। आज जेस का काम करते हुए स्वामी विवेकानंद का काफी सारे प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करने का काम हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। जेस ने एमओयू साइन किया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑर्फेनेज, वहाँ 40 स्टूडेंट्स हैं। सोशल कंट्रीब्यूशन में भी जेस है। फॉर एग्जांपल अफॉरेस्टेशन ड्राइव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, इस सब को प्रमोट करने का काम भी जेस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे या फिर जेस को मुझे कहना गलत होगा, क्योंकि मेरे इस काम में बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उन सबके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। हमें बहुत सारी अदर ऑफर्स भी मिली है। हमने शुरू किया था 2 स्टूडेंट से, आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमारे पास है। फ्यूचर प्लान्स में हमारी 300 प्लस ब्रांच ऑल ओवर पैन इंडिया। दिस इज द ड्रीम ऑफ जेस। दिस इज नॉट द ड्रीम ऑफ ओनली माइन, but this is a dream of entire team of JES to expand ourselves with 300 branches pan India level. And मैंने मेरे prospectus में, हमने हमारे prospectus में, I repeat, I'm so sorry that I'm using the word मैंने, वो आ रहा है बार बार, मुझे यूज करना है हमें, हमने हमारे prospectus में promise किया हुआ है by printedly, if you are from the economically weaker sections of society, if you are poor income group family, your admission is not gonna denied by institution. आपका एडमिशन एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। एंड जो फीस हमने ऐसा प्लान करके रखी हुई है, वो जस्ट टू रन द प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल मैनर। दैट इज द रीजन व्हाई हमने फीस अलॉट किया। प्लीज बिलीव मी, द जेस इज नॉट बिहाइंड द मनी, एज द स्वामी विवेकानंद सेड, जस्ट फोकस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, मनी विल फॉलो यू। डोंट फॉलो द मनी। आस्क योरसेल्फ कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है क्या? अगर है तो मनी विल फॉलो यू। So this principle of Swami Vivekananda I used to follow in my personal life, in the life of JES, and I'm expressing all these opinions and all these perspectives of Swami Vivekananda with my students also, with my whenever there is a PTM, I mean parents teacher meetings, मैं seminars भी लेता हूँ वहाँ पे भी ये सब बातें मैं उनके सामने रखता हूँ। हमें अदर ऑफर्स भी आ रही है। इट मीन्स मैं तो अकेले ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया, बनता है। If your commitment is true and your cause is very pure, no one can stop you. No one can stop you. आपकी हार हो ही नहीं सकती। बट हमें खुद चेंज करना है, खुद को चेंज करना है हमको हमारे लाइफ में। Now I'm moving towards next slide. Yes, I have already told you 300 plus branches. Other offers are also there. Now mission statement. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक फर्म का, हर एक स्टार्टअप का, हर एक इंडस्ट्री का, सबका अपना एक मिशन स्टेटमेंट है। मैंने स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? टू नर्चर यूथ विद नेशनल कैरेक्टर। द वर्ड नेशनल, मैं प्रेशराइज कर रहा हूं, द वर्ड नेशनल। आई एम हियर इन इंडिया, what we are doing, guys. For example, the Mr. Respected Gupta sir, Mr. Respected Bothra sir, and all the staff of our might, and all the educational institutions in the entire India, what they are doing, they are contributing towards the nation building, isn't it? Yes, I am doing the same. हमें वॉल खड़ी करनी है, उसका एक पहली ब्रिक हमने रखी है। आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन नेशन बिल्डिंग, कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। दैट इज व्हाई मैंने सेशन स्टार्ट किया था, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज नॉट इन अ पब, future of India is not in a club, future of India is here, the online platform that we are discussing here. And Swami Vivekananda already said that, appropriately said that, you set the goal in your life, money will follow you, money will definitely follow you, and the people around you, they are the real God, they are the real God. मुझे यहाँ पे एक चीज कहनी है, हर शुद्ध संकल्प के पीछे, संकल्प कुछ भी हो बट वो शुद्ध होना चाहिए, कि मेरा भला कर बाजू वाले का खराब कर, वो संकल्प शुद्ध नहीं है। हर शुद्ध संकल्प के पीछे ईश्वर होता ही है, भले आप नास्तिक क्यों ना हो, आपका विश्वास ईश्वर नहीं है, वो भी एक विश्वास ही है। हर शुद्ध संकल्प के पीछे ईश्वर होता ही है, भले उसे मानो या ना मानो। अब ईश्वर होता है, इसका मतलब मुझे हाथ आगे करने का हक नहीं है।
आई वॉन्ट टू से दैट मुझे हाथ ऊपर करने का हक नहीं है, मुझे हक दिया है आगे करने का। आगे किसके सामने? समाज के सामने। इसका मतलब वो ईश्वर समाज के रूप में, मतलब आप सभी लोगों के रूप में प्रकट होता है ना। आज आर्माइड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स है, जितना भी स्टाफ है, क्या वो ईश्वर नहीं है हम सब लोग के लिए? क्या वो ईश्वर आप सब लोग के रूप में प्रकट नहीं हुआ है? आज हमारा आर्माइड चल रहा है, आज हमारा जेस चल रहा है, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रही है, हर एक फर्म चल रहा है, हर एक एस्टैब्लिशमेंट चल रही है, हर एक कंप्लीमेंट चल रही है। So follow the principle of some role models. First, fix some role models in your life and follow the principle of them. Now I have to move to the next slide. Towards the conclusion. Conclude करने के पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोग को। Wait for a minute. मुझे एक next slide चेक करनी है. After conclusion is the next slide is no. Beyond conclusion, I have to beyond conclusion. Now मैंने कहा था आपसे, मैं कहानी एक स्टोरी शेयर करूंगा आप लोगों से। ये स्टोरी मैंने एक नॉवल में पढ़ी है, जब मैंने सिविल्स के लिए पढ़ रहा था। मैंने गिव अप नहीं किया है, मैंने बाय चॉइस गैप रखा है। सिविल्स के मैंने अटेम्प्ट्स मेरे बाकी है, तो मैं देने वाला जरूर हूँ, बट फिलहाल के लिए मेरे इस सेटअप के लिए टाइम देना है। तो मैंने बाय चॉइस, और घर से थोड़ा प्रेशर भी है कि अभी थोड़ा अर्निंग जरूरी है, तो मुझे उनकी बात सुननी है, तो फिलहाल मैंने वो साइड में रखा हुआ है सिविल सर्विसेज का। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। स्टोरी है, एक लड़का है रुर्क नाम का, न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क में एक आर्किटेक्चर कॉलेज था। आई डोंट थिंक सो इट इज रियल स्टोरी और व्हाट, आई थिंक इट इज रियल स्टोरी। आर्किटेक्चर कॉलेज में एक स्टूडेंट है रुर्क नाम का। रुर्क वो विचारों से मुक्त है, मतलब ओपन माइंडेड लड़का है, नैरो माइंडेड लड़का नहीं है वो। उसे कास्ट सिस्टम पसंद नहीं है, उसको डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, व्हाटएवर, वो ये सब चीजों को मानता नहीं था। उसके लिए सब समान है। आपको पता होगा अमेरिका में रेसिज्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो उस चीज को भी फॉलो नहीं करता था। रुर्क वाज व्हाइट। और जिस कॉलेज में रुर्क पढ़ता था, आर्किटेक्चर कॉलेज था, आर्किटेक्चर 5 साल का होता है, उस कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ उसकी बनती नहीं थी। प्रिंसिपल को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इतना ओपन माइंडेड कैसे है। वी आर ऑल व्हाइट एंड ही इज एंटर्ड इन ब्लैक। कल परसों ही अमेरिका में कोई इंसिडेंट हुआ, किसी पुलिस, आई थिंक आपने न्यूज देखा होगा, जहाँ पे ब्लैक रेसिज्म का फिर एक आउटब्रेक हो गया मूवमेंट, क्योंकि वो ब्लैक पीपल को बाय मिस्टेकनली पुलिस ने, आई थिंक उसके एक्शन में वो डेड हो गया। अगर आप अपडेट हो तो आपको पता रहेगा ये न्यूज। तो रुर्क रेसिज्म को मानता नहीं था। इस चीज से प्रिंसिपल नाराज थे, और उसकी और रुर्क की जमती नहीं थी। प्रिंसिपल ने इंश्योर किया कि रुर्क का डिग्री कोर्स समय पे कंप्लीट ना हो, वो फेल होते रहे। बट रुर्क वाज एक्सीलेंट, एकेडमिक इंटेलिजेंस वाज सो नाइस, एलीट, IQ 140, बहुत शार्प था अपने पढ़ाई में वो। और उसके जो अदर बैच वाले थे, दे लिटरली वर्शिप रुर्क। कैसे तैसे उसने अपने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया। आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद अब जॉब भी तो चाहिए हम लोग को, तो रुर्क जॉब के तलाश में था। रुर्क था। तो जो प्रिंसिपल हमारे थे रुर्क के, उनका नाम था सर एल्सवर्थ टुई। टुई ने इंश्योर किया कि रुर्क को कहीं जॉब ना मिले, क्योंकि पॉलिटिकली स्ट्रांग थे वो, पॉलिटिकल सेटअप, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। तो उन्होंने इंश्योर किया कि रुर्क को जॉब ना मिले। और रुर्क को मॉम डैड उसे थे नहीं, तो वो अपने एक रूम में रहता था, पूरा दिन पड़े रहता था। उसे उस रूम के रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। तो ऐसे ही आज हम एलुमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग। ऐसे ही उस वक्त के प्रिंसिपल ने, मिस्टर टुई ने, रुर्क की बैच के सभी स्टूडेंट को और रुर्क को इनवाइट किया पार्टी के लिए कि सब लोग आ जाओ। 4 साल 5 साल हो गए थे, अब जो जहां सेटल है सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। और सर्दी के दिन थे और इवनिंग के वक्त पार्टी रखी थी। तो सब लोग अपने अपने कार्स में आ रहे हैं, ब्लैक कार्स, ब्लेजर, कोट, टाई, ब्लैकिश एंड शाइनिंग शूज एंड ऑल, एक वेल डेजिग्नेटेड पर्सन, सब लोग ऐसे आ रहे हैं। और बेचारा रुर्क एक सिंपल गोल गले वाला टी शर्ट, एक जींस और सिंपल सी शू, पार्टी में ऐसे एंट्री कर रहा है।
और सब लोग को पता है ये हालत रूट की ऐसी किसने की है, क्यों की है, सब लोग को पता था, लेकिन कोई कुछ बोले बोले तो जिस जो बोल रहा है उसकी बैंड बजेगी, इसके लिए कोई उसके अगेंस्ट में कोई बोल भी नहीं रहा है। अब पार्टी स्टार्ट हो गई है, ट्राई टू इमेजिन द सीन, पार्टी स्टार्ट हो गई है और जिस चीज के लिए पार्टी बुलाई गई है वो हो ही नहीं रही है। पार्टी का मोटो क्या था मिस्टर रुर्क का, मिस्टर ट्वी का, कि रुर्क की इंसल्ट करनी है सबके सामने, कि तू मेरे सबके सामने घुटनों पे बैठ, मेरी माफी मांग, तब तेरा करियर में सेट करूंगा। बट रिक पता नहीं कौन से मिट्टी का बना था, रुर्क माफी नहीं मांग रहा था उनसे, उसने कभी माफी मांगी नहीं उनसे। मैं क्यों मांगू माफी, मैंने गलती क्या की है? रुर्क का ये स्टैंड था, उसी स्टैंड की वजह से बेचारे की हालत हो गई थी। ना जॉब है, ना रेंट दे पा रहा है, ना खाना टाइम पे मिल रहा है, बेचारा फंस गया। अब पार्टी जिस मूवमेंट के लिए बुलाई थी वो मूवमेंट हो नहीं रहा था। रूर्क इमेजिन कीजिए टेरेस पे एक जगह खड़ा है और टेरेस की पार्टी चल रही है, कॉर्नर में खड़ा है, और यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में वाइन एंड ऑल ये सब नॉर्मल उनका कल्चर है वो। तो रूर्क के हाथ में वाइन का ग्लास है, रूर्क शांति से एक जगह खड़ा है, ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई और एक सिप ले रहा है। और पार्टी के दौरान वो नीचे उतरता है किसी काम से और स्टेयरकेस पे उसे मिस्टर ट्वी मिल जाते हैं। एक बार ट्वी लेफ्ट साइड तो रूर्क राइट साइड, रूर्क राइट साइड तो फिर मिस्टर ट्वी राइट साइड। ये होता है ना स्टेयरकेस पे, कभी कभी हमारे साथ हुआ रहेगा, किसी के साथ होता है। वैसा वो इंसिडेंट था। मिस्टर ट्वी ने बरोबर अपने आप को मिस्टर रूर्क के सामने खड़ा कर दिया और पूछा रूर्क से, कम ऑन रूर्क प्लीज टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी। मैंने तेरी ये हालत बना के रखी है, तू मेरे बारे में सोचता क्या है? मुझे गाली दे, मुझे मार, पत्थर मार, मेरे को डंडा मार, कुछ तो कर, तो कुछ कर क्यों नहीं रहा है? टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी। बट रूट ने कंधे ऐसे उड़ाए और बोला, बट आई डोंट थिंक अबाउट यू सर, और वहां से चला गया टेरेस के ऊपर। फिर से एक बार मिस्टर टूई को और गुस्सा आया, ये किस मिट्टी का बना है, इसे करूं तो क्या करूं मैं। अब रूट फिर अपने जगह पे जाके खड़ा हो गया टेरेस पे एक कॉर्नर में, वाइन का ग्लास हाथ में है। मिस्टर टूई ने वेटर को बुलाया, खाली वाइन का ग्लास ट्रे में रखा, भरा हुआ वाइन का ग्लास उठाया और साइड वाले स्टूडेंट को कहा, नाउ आई एम गोइंग टू इंसल्ट रुर्क, स्प्रेड दिस मैसेज अमंग ऑल। मैं रुर्क की इंसल्ट करने जा रहा हूँ, ये मैसेज सब में फैला दे। और ट्राई टू इमेजिन, एक फोकस चल रहा है, अंधेरी रात है, हल्का सा लाइट है, रुर्क की तरफ मिस्टर टूई जा रहा है उसके इंसल्ट करने के लिए विथ वाइन ग्लास। मिस्टर टूई ने उस रुर्क को सेंटर में बुलाया कि यहाँ पे आ बेटा, ठीक है तू माफी नहीं मांगता मत मांग, मैं तेरी नॉलेज का टेस्ट लेता हूँ आज, तुझे बहुत नॉलेज है ना, दे ऑल वर्शिप, तेरे कलीग सब तेरे वर्शिप करते हैं, मुझे टेस्ट करने दे। रूट ने सिंपली हंसते हुए कहा, यस यू कैन सर। अब दोनों बैठे हुए हैं, बाकी सब सराउंडिंग में खड़े हैं। ट्राई टू इमेजिन मिस्टर टूई उसको वन आफ्टर अनदर, आर्किटेक्चर फील्ड था तो आर्किटेक्चर फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड प्लीज बिलीव मी, रूट खटाखट 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 वन आफ्टर अनदर क्वेश्चन के आंसर दे रहा है बिना रुके, विदाउट एनी पॉज। अलग अलग ट्रेडिशन से आर्किटेक्चर की, सबसे पहले घर कैसे थे हमारे, मिट्टी से, फिर आर्किटेक्चर कौन सा आता है, स्टोन से बने हुए घर, फिर आर्किटेक्चर कौन सा आता है, वुड से बने हुए घर, है ना। फिर अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर है, यूरोपियन यूरोपियन आर्किटेक्चर, गॉथिक आर्किटेक्चर, ग्रीक आर्किटेक्चर, कुलीन आर्किटेक्चर। आज जो आर्किटेक्चर हम देखते हैं वो मॉडर्न आर्किटेक्चर है। ये ट्रेडिशन से आर्किटेक्चर्स की अलग अलग, हर एक ट्रेडिशन के ऊपर मिस्टर टूई ने रुर्क से क्वेश्चन पूछे और हर एक ट्रेडिशन के आंसर्स रुर्क ने हंसते हुए विदाउट एनी पॉज देता गया देता गया देता गया देता गया। एक मोमेंट ऐसे आता है, मिस्टर टूई ने सोचा इसको मैं एक ब्लॉक करने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि ये फंस जाए, आंसर दे भी तो भी फंसेगा, आंसर ना दे तो भी फंसेगा। मिस्टर टूई ने उससे पूछा रुर्क से, अच्छा चलो सब कुछ मान लिया मैंने, प्लीज टेल मी नाउ विच ट्रेडिशन यू बिलोंग टू। आर्किटेक्चर की कौन से ट्रेडिशन को यू बिलोंग, तो कौन से ट्रेडिशन को बिलोंग करता है मुझे बता। वहां वो फंस गया, आंसर दे तो भी फंसेगा, क्यों, तू तो रेसिज्म फॉलो नहीं करता, तेरे लिए डिस्क्रिमिनेशन मायने नहीं रखता। अब तू अपने आप को बोल रहा हो कि मैं इस ट्रेडिशन को बिलोंग करता हूँ, इट मींस यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग पर्सन। और आंसर दे तो भी फंस रहा है, ना दे तो भी फंस रहा है, अब करे तो क्या करे। 15 to 20 सेकंड का उसने पॉज लिया था और उसने आंसर दिया था, I do not stand at the end of a tradition, but probably at the beginning one. It means that हम किसी परंपरा के आखिर में नहीं खड़े हैं, हमसे नई परंपरा की शुरुआत करेंगे। मिस्टर टूई ने ग्लास फेंक दिया ऐसे नीचे और वो घुटनों पे बैठे और उन्होंने
रूर की माफी मांगी. So this is all that I have to express all my feeling to you. I did the same. Now it's to you, Ram sir. Thank you so much. Thank you, each and everyone. Thank you so much. Thank you, Sashi, for sharing Thank you, sir. your knowledge. Thank you, sir. I must tell you that today's your sharing is one of the best I have heard from the alumni till now. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So we'll start with the question answer thing. Okay. Yes, sir. One question I want to ask is Yes. pursuit of, then we'll get Yes. pursuit of happiness. But now Yes. the challenge is the Yes. knowledge or information is so much around. Yes. We are bombarded with social media. Morning we get some videos, afternoon we get some links, Yes. some creative. So every time there is bombardment of knowledge and Yes. information, and we keep on thinking, is this better chance or this better chance, or should I Exactly. do this or that? So what is your point on that? Exactly. सर मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक, इस क्वेश्चन पे प्रोबेबली आस्क योरसेल्फ, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि मेरे में क्या है. देखो मेरे को एक चीज कहना पसंद आएगी यहाँ पे, सेल्फ अवेयरनेस. मैंने एक वर्ड यूज किया था सेशन में कि मैं कौन हूँ. ठीक है. बाय बर्थ साइंस ने प्रूव किया हुआ है हम सभी में एक स्किल है. बाय बर्थ हम सभी में, और गॉड गिफ्टेड है वो. हम मम्मा के पेट से लेके आए हैं, हमें किसी ने दिया नहीं है. ना किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, ना किसी सोशल इंस्टीट्यूशन ने, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने, हमें किसी ने नहीं दिया. हमें गॉड गिफ्ट है, मम्मा के पेट से हम लेके आए. किसी किसी केस में बहुत जल्दी पता चल जाता है बच्चों को कि मेरे में क्या है. किसी को पेंटिंग करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन मैं अभी आपका फोटो निकाले बैठू, पता नहीं क्या बनेगा, मुझे नहीं आएगा. पसंद होना अलग चीज है सर, और स्किल होना अलग चीज है. अग्री सर? पसंद होना एक चीज है और स्किल होना अलग चीज है. आस्क योरसेल्फ मेरे में वो क्या स्किल है. Then all the question around you that running around you ultimately eliminated. एक ही बचा रहेगा कि ना मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ. Definitely the answer is with you in that case. Thank you, sir. Thank you. One of the learnings you shared, that don't flow after money. Yes, yes. Right? Money will follow you. Yes. Right? Yes, sir. ये होता नहीं है, सब जन मनी के पीछे भागते हैं. जी जी जी, होता नहीं है रियल लाइफ में. जी सर. राइट. तो दिस लर्निंग को एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करें स्टूडेंट्स? स्टूडेंट कैसे करें? ठीक है, मैंने ओके सर, ओके ओके. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट ईयर में है, जो 7th and 8th सेमेस्टर में है, वो जब बच्चे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ना सर, मैं भी उन्हीं में से एक था कि पैकेज कितना मिलने वाला है, एक कंपनी लेके आई, पैकेज क्या है इसका. बट इज वी आर लुकिंग इनवर्ड कि मेरे में वो स्किल है कि उनको जो चाहिए. सर मैं एक एग्जाम के लिए बैठा हुआ था, हमारे वक्त भी कंपनी आई थी मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा सर मुझे. उनकी एंट्रेंस टेस्ट हो रही थी, मैं वो एंट्रेंस एग्जाम तक पास नहीं कर पाया था. इस केस में मुझे हक है सर कि मैं पैसे के बारे में सोचूं? नहीं. मुझे खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैंने अपने आप को एलिजिबल किया उस चीज के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल पुनीत शर्मा करके एक एल्यूमिनी आके गया हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ था सर, उसका सिलेक्शन हुआ था. बात साफ है, उसमें वो कैपेबिलिटीज थी, उसने उस चीजों पे काम किया है. मैंने नहीं किया था, मुझे यहाँ पे शेम फील नहीं हो रहा, मैंने डेफिनेटली नहीं किया था, इसके लिए मुझे चांस मिल नहीं पाया, और मैं उस वक्त शायद उतना सीरियस भी नहीं था. इफ यू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द टाइम, then no one can beat you, and money in that case follow you. Without proving yourself, money will not follow you. So this is the message from my side. First, fulfill the demand of the time, fulfill the requirements of the time, whichever condition and whatever the matter is, you have to fulfill the condition of the time of that particular scenario and situation. Then and then only, then you can experience the money will follow you. Then don't run behind the money. Please, Right. one more thing, sir. One more thing. Establishment of JES.
मैंने इस फर्म के लिए ना मेरे पेरेंट्स से, ना मेरे रिलेटिव से, ना कोई बैंक लोन, ना ही कोई नेबर्स, मैंने कहीं से फंडिंग, कहीं से फाइनेंस नहीं ली। मतलब खुद ही सब कुछ खड़ा किया एंड खुद ही किया। कहीं से मैंने कहीं फंडिंग, कहीं फाइनेंस कहीं से लिया नहीं। Salute to you, क्या sir. ये प्रिंसिपल यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा? जर्नी ऑफ नॉलेज एंड देन मनी विल फॉलो यू। Yes. यस, नाउ वी आर हैविंग द फ्यूचर प्लान्स टू, बट कोरोना वायरस के हमने डिले कर दिया, सब कुछ डिले कर दिया। थैंक यू सर। Right. Right. थैंक यू। तो जैसे आपका ये जर्नी बता रहे हो, सी जी मेनी जी। टाइम्स ये जर्नी थोड़ा अपना डिफिकल्ट होता है इनिशियल स्टेजेस में, जी बट नॉट एवरीवन इज रेडी फॉर दिस जर्नी. दे वांट क्विक Yes. सक्सेस. एग्जैक्टली। क्विक सक्सेस मुझे मिल जाए, मैं हाँ. फिर घूमूं, मजा करूं. हाँ, और exactly. एक Exactly, दूसरा है, life settle. आप बात किए कि यस अभी स्टार्ट में बहुत डिफिकल्टीज है, बट डाउन द हाँ. लाइन इट विल हैव वेरी गुड फ्यूचर एंड मोर Exactly. सक्सेस. तो व्हाट हाउ यू विल टेल स्टूडेंट्स कि which journey they should choose? कौन सी देखो, मैं जर्नी फिर से चूज करें? अच्छा, मैं फिर से बार एक चीज कहना चाह रहा हूँ सर। मेरे आपके हर एक क्वेश्चन में मेरा एक आंसर फिक्स कॉमन आपको मिलेगा। आस्क योरसेल्फ कि मुझे क्या करना है। देखो, कॉम्पिटिशंस है। एक कुआं है, कुएं में एक मेंढक लो, मुझे एक एग्जांपल देना पसंद आएगा यहाँ पे। एक मेंढक लो, फ्रॉग को अगर आपने उठा के गर्म पानी में डाल दिया ना 2 मिनट के लिए ऐसे उठा के, तो वो अपनी पूरी जान लगा के जंप करेगा। पूरी जान, अपनी जान बचाने के लिए पूरी जान लगा के जंप करेगा। बट वही मेंढक को, अगर वही फ्रॉग को आप एक कंटेनर लेते हो, ठंडे पानी में रखो, नीचे स्टोव बर्नर स्टार्ट करो, पानी गर्म होता रहेगा, पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन फ्रॉग जंप नहीं करेगा। आस्क योरसेल्फ, क्या हम उस कुएं के मेंढक तो नहीं बने पड़े हैं? हमें पता ही नहीं चल रहा सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है साइड, और मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल पा रहा हूँ कि नहीं बदल पा रहा हूँ। आस्क योरसेल्फ। हर तीनों क्वेश्चन में कॉमन एसेंस है सर। आस्क योरसेल्फ हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। आज हम जो कुछ भी हम बने हमारी लाइफ में, जहाँ कहीं बैठे हुए हैं, ये हमने हमारी सोच की ये करामात है सर। आज हम जाएंगे जहाँ कहीं, जो कोई भी हो, जो भी कोई सेशन सुन रहा है, ये हमने जो पास्ट में सोचा था वही आज है। अगर तुम आज जो सोच रहे हो, फ्यूचर में जो बनना चाहते हो, वही तुम बनोगे। उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, फिर वो डिफिकल्ट है। आज वो मुंबई की लाइफ ही है, एक वेस्टर्न लाइफ, वेस्टर्न कल्चर ही है। फटाफट एजुकेशन कंप्लीट करो, फटाफट नौकरी लो, फटाफट सैलरी अच्छी देखो, शादी करो, कार लो, फ्लैट लो, सेटल हो जाओ। और क्या किया फिर हमने पूरी थ्रू आउट द लाइफ में? कुछ नहीं किया। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ स्ट्रे डॉग। मेरा बर्थ स्ट्रे डॉग के लिए नहीं बना था, मेरा बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग बना है। डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रोल प्ले दिया है गॉड ने मुझे। दैट इज द रीजन व्हाई। आस्क योरसेल्फ वो क्या है, और वो पहचानने के लिए एक स्किल दी है गॉड ने कि तेरे को सब कुछ, तेरा पूरा का पूरा कैनवास जो तूने बनाया, मैंने कैनवास के बारे में बताया था, तेरा पिक्चर इस पे खड़ा करना है। हाँ, अगर आपको क्विक रनर बनना है कि फटाफट एजुकेशन, फटाफट जॉब, फटाफट शादी, फटाफट कार, फटाफट फ्लैट, फटाफट पैसे, तो आप फेंक दिए जाओगे। मतलब वो कोई भी हो बंदा, XYZ, मैं भी क्यों ना हो, मैं भी फेंक दिया जाऊंगा। This is what the answer I. One question I'm getting on Yes, sir. YouTube chat. Yes, sir. Sashi, what is your experience in Maturdeva Bhava event? Yes. Which is one Okay. of the biggest event of Armite yes, known sir. for. Yes. मातृदेवो भव की कमेटी में मैं कभी नहीं रहा, बट मैंने मातृदेवो भव का कभी भी 2 साल में, थर्ड ईयर में जब गया था, तब से सर ने शुरू किया था। दोनों के दोनों मेरे ख्याल से मुलुंड में हुए थे। मुलुंड में कोई एक है, मैं भूल गया हॉल का नाम, वहां पे थे। वो एक्सपीरियंस मुझे एक इनसाइट देके गया कि सर का रिस्पेक्ट अपनी मम्मा के टुवर्ड्स कितना है। वो एक मैसेज था मेरे लिए। ठीक है, अगर ये एक इंसान इतना बड़ा बन गया है, रिस्पेक्टेड गुप्ता सर, ठीक है, इसके बाद भी मतलब उन्होंने सब कुछ सबकी अचीवमेंट अपनी मम्मा के चरणों में रखी है। तो एक उनसी बात हम तो सीख ही सकते हैं ना कि हमें भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है लाइफ में। तो वो एक मेरे को वहां से एक गेन मिला है सर से, और वो डेफिनेटली सर, मैं यहाँ पे बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगा। सेम प्रिंसिपल आई एम ट्राइंग टू फॉलो इन जस्ट द सेम प्रिंसिपल। थैंक यू, आपने वो क्वेश्चन पूछा मुझसे। Thank you so much. Armite say you are carrying this learning. Yes. yes, definitely sir. Armite से मुझे मिला हुआ है। Finally, last 2 questions yes, I'll sir. ask. Yes sir. एक yes बोला था कि we should take responsibility and we'll grow. हाँ, yes. लेकिन exactly, बहुत बार ऐसे होते हैं कि persons responsibility लेते हैं और fulfill नहीं करते और expectation करते हैं,
और जी, जी। इसमें गड़बड़ होता रहता है. There is lot गड़बड़ of होता रहता है। difference between taking ठीक है, responsibility yes, and fulfilling the responsibility. yes, So what yes, suggestion for yes. students के what level of responsibility they should take? हाँ, इसमें मैं एक कहानी सुनाऊँ सर? मेरे पास इसके लिए भी एक एग्जाम्पल मेरे पास है। Yeah. इफ यू अलाउ मी, इफ यू अलाउ मी, क्योंकि आपके Yeah. उसका आंसर उसी कहानी में छुपा हुआ है। Yes. एक आश्रम है, अभी तो कॉलेज है, स्कूल है सर, पहले तो आश्रम हुआ करते थे, वहां पे आचार्य हुआ करते थे, मतलब आज के सर एंड मैडम, मैडम भी नहीं, मैम एंड सर, उस वक्त आचार्य हुआ करते थे। आचार्य के पास कौन होते थे? शिष्य होते थे। आज स्टूडेंट हो गए, प्यूपिल हो गए, उस वक्त शिष्य हुआ करते थे। तो ऐसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 शिष्य थे एक गुरु के पास, और दोनों एकदम इक्वल, मैच टू मैच, हर एक चीज में एक्सीलेंट, कंपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है दोनों को। दोनों अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, गुरु के पास जाके बोलते हैं हम में से बेस्ट कौन है। अब गुरु फंस जाते हैं, आंसर दूं तो क्या दूं, इसे बताओ तो उसे बुरा लगे, उसे बताओ तो इसे बुरा लगे। इसमें रोल आता है कमिटमेंट का। आगे देखो क्या हो रहा है स्टोरी में से, कमिटमेंट का रोल आता है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, फुलफिल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यू आर लाइंग विथ योर प्रोफेशन, यू आर डूइंग चीटिंग विथ योर प्रोफेशन, वो वेयर द पर्सन इज, मैं भी क्यों ना हो, आई एम डूइंग चीटिंग विथ माई प्रोफेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं करना, वो सबसे बड़ी चीटिंग होती है किसी भी प्रोफेशन के अंदर। अगर ले रहे हो तो विथ जेन्युइन, होल हार्टेडली जाना है और उसे फुलफिल करके निकलना है, क्योंकि आपने किसी को वचन देके रखा है इनडायरेक्टली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो गुरु ने कहा उन दोनों शिष्यों से, एक काम करो, 2 कबूतर लेके आओ, और कबूतर का यू हैव टू, आई मीन द गला काटना है, द वर्ड इज हियर ओनली, आई हैव, ठीक है। और ये करते वक्त आपको देखना है कि आपको कोई देखे ना, कंडीशन एक ही है, ये करते हुए आपको इंश्योर करना है कि आपको कोई देखे ना। दोनों खुश हो जाते हैं, इतना सा टास्क है, ये कर दूंगा तो मैं फिक्स हो जाऊंगा कि हाँ मैं एक्सीलेंट हूँ इससे कंपैरेटिवली। तो पहला स्टूडेंट सर निकलता है कबूतर लेके और नाइफ लेके, वो जा रहा है, नगर चला गया, विलेज चला गया, नगर चला गया, जंगल लग गया, वो जहाँ कहीं देख रहा है उसे कोई ना कोई देख ही रहा है। अब चलाऊं तो कैसे चलाऊं मैं? जंगल में एक कोने में जाता है जहाँ काफी सारा अंधेरा है, और अंदर घुसता है, उसे लगता है यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, और वो बेचारा नाइफ चला देता है और खुश होकर रिटर्न आने लगता है। और दूसरा जो था वो अलग रास्ते निकलता है, विलेज क्रॉस, सिटीज क्रॉस, फिर विलेज क्रॉस, कंट्री साइड क्रॉस, जंगल लग गया, जंगल में घुस गया, घने जंगल में जा रहा है, उसको ऐसे हमेशा लग रहा है कोई ना कोई तो देख रहा है मुझे। वो सोच में पड़ गया, सर लगता है ये मेरे से काम नहीं होने वाला, मुझे हर जगह कोई ना कोई देख रहा है। उसे एक गुफा दिखती है, डेन, वो डेन में घुसता है, डेन के माउथ को बहुत बड़ा पत्थर लगा देता है ताकि अंदर अब फुल अंधेरा हो जाए, अंधेरा, डार्कनेस, क्योंकि अंदर मुझे कोई नहीं देखेगा। उसे लगता है अब मैं टास्क जीतने वाला हूँ और मैं बेस्ट स्टूडेंट करके निकलने वाला हूँ। वो बेचारा नाइफ लेता है, गला पकड़ता है, और जैसे ही कट करने जाता है उसके अंदर सवाल आता है कि भाई मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ ना, आई एम द वॉच डॉग ऑफ माई ओन सेल्फ। वो छुरी नहीं चलाता, वापस आता है और गुरु को बोलता है ये पकड़ो आपका कबूतर, मैं हार गया, आई एम नॉट एक्सीलेंट स्टूडेंट, मेरे से नहीं होने वाला। नाउ यू गॉट व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन, कि मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ ना, आई एम द वॉच डॉग। द बेस्ट एग्जांपल आई हैव फॉर द सेम क्वेश्चन सर, दैट इज व्हाई आई सेड विद यू। Thank you so much. Thank you. Lastly, Thank you, sir. Thank you. lastly, what is Yes, your sir. Yes. message for Armite College? Armite College सर बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ उसे फेसबुक पे। एक्चुअली मैं उनसे काफी कुछ सीख रहा हूँ। मैसेज ये रहेगा सर, हमें थोड़ा और ग्रो करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने सेम टास्क, गुप्ता सर ने भी, बोत्रा सर ने भी समंदर भर के सपने देखे होंगे, अभी हमने बस एक बूंद का हाफ ड्रॉप अचीव किया है, बहुत काम बाकी है। मेरे इरादों का इंतहा अभी बाकी है, शायद हमें और बहुत काम करना है। फ्यूचर में अगर हम मिले तो टुगेदरली काम कर पाएंगे। सर से मुझे मिलने एक बार डेफिनेटली आना है, गुप्ता सर एंड बोत्रा सर से। तो यही मेरा मैसेज है, हमें और ग्रो करना है, एंड along all, not individually but all together. Thank you. Thank you so much, Shashi. Thank you, आज sir. का सेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है आपका नाम शशि वाघमारे नहीं रहना चाहिए Yes. था यार। Sir, thank you so much. I mean, your ocean of knowledge now. जी, thank you so much, sir. Thank you. आपने एक चीज कही मुझसे कि one of the best session. I don't think so, but I take it I'm positively. telling you कि आपने आज है ना एक हाँ. अपने
इधर जो भी जी, sir. alumni आए हैं जी अपने एक जी, लेवल sir. इंक्रीज कर दिया है now. जी सर, थैंक यू. I think जी जी सर, मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे दूँ सर ये, मैं आप यकीन नहीं करोगे, वी आर ऑनलाइन सर. yeah online. यस, मैंने रात भर से प्रिपरेशन किया है इस चीज़ का. Okay. हाँ, मैंने होल हार्टेडली मुझे पता था कि मुझे कब किस चीज़ के बाद क्या देना है, काफ़ी सारा प्रिपरेशन किया है, बहुत सारी बातें मैंने बताई नहीं है, बहुत सारी बताई नहीं है सर अभी. काफ़ी कुछ कहना है, बट हमारे पास टाइम लिमिट है तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया. गिविंग द वोट ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you so much, Shashi Wagmare, for coming Thank you, here sir. and sharing your views. And You have namaste. excellently guided all our students, the Thank knowledge you, you sir. have shared. On behalf of our entire college, Ji. professors, teachers, our chairman, trustees, everyone, we are Definitely, sir. thanking you once again for Thank you, sparing sir. your time and coming here. Thank you. And sir, one more thing, Vandan, namaste. 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 The best wishes always there from my side. Thank you so much, sir. Yes, once again, namaste to you. Thank you. Namaste. Thank you. So with this, friends, we are coming end of our first day. Tomorrow, not tomorrow, we will be there on Thursday now, and we will have alumni Mr. Chintan Ruparel, who will be sharing Armite freshers to emerging professional topic. So see you then. Goodbye. Thank you for watching.